My dear students of class 8th, as you know that we have completed our section A of unit 1, which is surprise and suspense, and moving ahead to section B of the same unit, you will also get suspense in this. So its name is One Summer Night by Ambrose Bierce, which is an edited version of One Summer Night. So before going through the chapter para wise para, let me tell you that what the story is all about. That the story One Summer Night, students, has 4 characters. You can see in the picture 3 characters are given. Okay, so 2 are from medical college and 1 person is a person who works at the cemetery, जो कब्रिस्तान में वर्क करते हैं बरीड करने का. ठीक है, 3 कैरेक्टर्स आपको दिख गए. नाउ वेयर इज द फोर्थ वन? फोर्थ वन कहाँ है? फोर्थ वन कैरेक्टर कौन सा है? 3 हमें मिल गए. ठीक है, फोर्थ वन ये रहा. A person who has been buried alive. And the story opens with the thoughts of a man named Henry Armstrong. So this person's name is Henry Armstrong, and all the story moves around this person. Okay. Now buried alive जो है ये तो डाइजेस्ट करने वाली बात ही नहीं है कि किसी को alive ही buried कैसे कर दिया. So what happens to him? Okay, how he has been buried alive, we will find out. So the story, students, has suspense, thrill, and at last what happened to this body which is not dead. Okay, और 2 मेडिकल स्टूडेंट्स का क्या काम है यहाँ पे, क्या करने आए हैं वो? So let's find out. Yes, now One Summer Night. Do you like to read stories? What's your favorite kind? Detective, humorous, suspense, romance, or horror stories? Do you think a story about a graveyard on a dark, stormy night can be humorous? Read on to find out. स्टूडेंट्स, क्या आपको स्टोरीज पसंद है? सबको पसंद होती है, किसी को रीड करना, किसी को सुनना. एंड सबके अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक सस्पेंस, रोमांस, हॉरर स्टोरीज, हम सबको पसंद है. बट डू यू थिंक दैट अ स्टोरी अबाउट अ ग्रेवयार्ड ऑन अ डार्क कैन बी ह्यूमरस? सो लेट्स रीड to find out. So the first para, Henry Armstrong was buried, but that did not prove he was dead. He had always been a difficult man to convince. Henry Armstrong, students, वो जो पिक्चर स्टार्टिंग में मैंने दिखाई थी आपको, जो buried कर दिया गया ह्यूमन बीइंग, उसका नाम है हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग. ही वॉज बरिड, बट ये कोई प्रूव नहीं मिल जाता कि वो मर गया है. ही वॉज डेड. डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात की, बट लेट्स सी. ही हैड ऑलवेज बिन अ डिफिकल्ट मैन टू कन्विंस. बहुत ही डिफिकल्ट रहा कन्विंस करना. क्या कन्विंस? बिकॉज क्यों उसे दफना दिया गया है? लेट्स सी. ही ले फ्लैट अपॉन हिज बैक with his hands crossed upon his stomach and tied with something that he easily broke. एकदम कॉफिन में, हम कॉफिन में कैसे लेटा देते हैं बॉडी को, बिल्कुल वैसे ही कर दिया गया है. और उसके जो हैंड्स से क्रॉस्ड है स्टमक पे ऐसे, एंड टाइड विद समथिंग दैट ही इजीली ब्रोक. किसी ऐसी चीज़ से बांधा है जो इजीली ब्रोक कर दिया गया है, टूट सकती है जल्दी. टाइट किया उसे. The inability to move his body, the black darkness and complete silence made it impossible not to believe that he was buried, so he accepted it. Inability to move, movement नहीं हो रहा है, और इतना darkness है कॉफिन के अंदर,
and complete silence. खामोशी होती है स्टूडेंट्स. Okay, so it impossible not to believe that he was buried. उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे बट. Now second para. But dead? No, he was only very, very ill. Being so sick, he did not greatly concern himself with the unusual circumstances he found himself in. वो डेड नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा बीमार है. और बीमार जो ज़्यादा हो जाता है, बेड पे रहता है पूरे टाइम, जो पड़े ही रह जाते हैं, वो एक तरह से डेड बॉडी टाइप ही हो जाते हैं. ओके, सो बीइंग सो सिक ही डिड नॉट ग्रेटली कंसर्न. जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो बिल्कुल आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं जाता. हम भी कुछ बीमार हो जाते हैं, थोड़ी चीज़ हो जाती है, हम भी ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बस बेड पे रहते हैं, मन नहीं करता है. तो वो तो बहुत ज़्यादा सिक है, बहुत ज़्यादा बीमार है. तो ही वॉज नॉट ग्रेटली कंसर्न. उसका ध्यान नहीं है कि उसका किस क्या कौन सी सर्कमस्टांसेस, कौन से अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस वो है अभी, है ना. ही फाउंड हिमसेल्फ इन. नो फिलोसफर वॉज ही, जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन विद अ डिजीज. कोई फिलोसफर नहीं है वो, ही इज़ जस्ट अ कॉमन मैन विद द डिजीज, जिसे बीमारी हो गई है. सो विथ नो पर्टिकुलर फियर फॉर हिज इमीडिएट फ्यूचर. कोई बस अपने ही एक अगले ख्याल में, एक अगले ही फ्यूचर वो देखता है कि हाँ यही है. विथ नो पर्टिकुलर फियर, कोई डर नहीं है. ही फेल asleep एंड ऑल वॉज एट पीस विथ हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग. तो वो क्या है, सो जाता है और वॉज ऑल एट पीस विथ हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग. हम सब देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से एक बीमार व्यक्ति, एक बहुत ही इल, बहुत ही सिक पर्सन को बरिड कर दिया गया. और उसने भी इस बिटर ट्रूथ, जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को एकदम एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बरिड कर दिया गया. सो वो ही इज़ नॉट ग्रेटली कंसर्न with the unusual circumstances he found himself in. Okay, now next para, the third one. But something was going on overhead. Overhead means उसके सर के ऊपर, means कॉफिन तो दफना दी गई है, उसके अंदर है वो, लेकिन ऊपर कुछ हो रहा है, मतलब ज़मीन पे ऊपर कुछ हो रहा है. It was a dark summer night, shot through with occasional shimmers of lightning, silently lighting up a cloud lying low in the west. Now students, कौन सी नाइट है ये बहुत ही समर नाइट, समर्स की एक डार्क नाइट है जिसमें लाइटनिंग हो रही है. ठीक है, टाइम टू टाइम शिमर्स ऑफ लाइटनिंग साइलेंटली लाइटिंग अप अ क्लाउड लाइंग लो इन द वेस्ट. और एक मतलब गर्मियों की जो अंधेरी रात होती है और कभी कभार बिजली के झटके से गुजर रहे हैं और बादलों में चमकती है ये चुपचाप बिजलियाँ. ठीक है, मतलब बहुत ऐसे कभी एकदम से आती है फिर गायब हो जाती है, इस तरह का जो है एकदम सीन क्रिएट हो गया है. और ये कहते हैं कि इट्स लाइक इट वाज सिग्नलिंग अ स्टॉर्म. द नेक्स्ट लाइन इज इट वाज सिग्नलिंग अ स्टॉर्म. सो ये एक तूफान का संकेत दे रहा है. ये जो रात अंधेरे की है गर्मियों की, और ये कभी कभार जो बिजलियाँ के झटके से गुजर रही है, जो बादलों में चुपचाप, ठीक है, वेस्ट की तरफ से, वेस्ट में कम बादलों के साथ जो चमकती है बिजली, ऐसा एक समर नाइट है. Now, these brief flashes of light brought out with ghastly clarity the monuments and headstones of the cemetery and seemed to set them dancing. ये क्या बताया है कि स्टूडेंट्स, घासली क्या होता है स्टूडेंट्स? घासली जो हाईलाइटेड वर्ड है आपका, आप वीडियो में भले ही आपको ना दिखे बट यू कैन सी इन योर बुक. घासली इन योर वर्ड मीनिंग दैट फ्राइटनिंग एंड अनप्लीजेंट. ओके, फ्राइटनिंग एंड अनप्लीजेंट है. अब बताया कि ये जो लाइटनिंग हो रही है ना, ये छोटी छोटी जो इसकी झटके आ रहे हैं, जो झलके दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये प्रकाश की जो, तो क्या हो रहा है, ये कब्रिस्तान की जो बने होता है ना, वो हेडस्टोन, कब्रिस्तान के जो मोनूमेंट्स बने होते हैं जो, ठीक है, उनके सामने आती हैं जाती हैं, तो ऐसा लग रहा है दैट दे आर डांसिंग, दीज लाइट्स आर डांसिंग. तो ये नाचती हुई प्रतीत हो रही हैं, नाचती हुई दिख रही हैं. ओके, एक हॉरर सीन क्रिएट किया गया है. ओके, नाउ
It was not the night in which any witness whose word could be depended on was likely to be moving about a cemetery. ये कोई ऐसी रात नहीं थी कि जिसमें किसी के भी वर्ड्स पे बिलीव किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता सेमेट्री पे। कब्रिस्तान में कौन आता है? कोई ऐसे ही तो नहीं आता। अब वहाँ पर ये आगे की लाइन ये है, सो द थ्री मैन हु वर देयर डिगिंग इनटू द ग्रेव ऑफ हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग फेल्ट रीजनेबली सिक्योर। अब ये थ्री मैन वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर बस ये तीन ही थे। ये तीन जो बोलते वही ट्रुथ होता, और तो कोई इनके अलावा था नहीं, तो किसी भी वर्ड्स पे बिलीव नहीं किया जा सकता। तो अब थ्री मैन जो हैं, जो डिगिंग कर रहे हैं हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग की ग्रेव को, जिसको बरिड कर दिया गया है, वो रीजनेबली सिक्योर फील कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो अब इस बात से थोड़ा फ्री फील कर रहे हैं कि यहाँ पर उनके अलावा कोई नहीं है। सो दे आर फीलिंग सेफ। खुदाई जो कर रहे हैं थ्री पीपल जो स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे स्टूडेंट्स, एक स्पेड लेके था जो सेमेट्री में काम करता है, एंड टू स्टूडेंट्स फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। टू ऑफ देम, ये फोर्थ पैरा, two of them were young students from a medical college a few miles away. The third was a gigantic man known as Jess. सो टू स्टूडेंट्स थोड़ी सी दूर पे जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वो बच्चे हैं। और जो जाइगेंटिक मैन, बहुत ही विशाल, जो उनके साथ एक हट्टा खट्टा सा जो एक आदमी है, उसका नाम है जेस। For many years, Jess had been employed at the cemetery as a man of all work, and it was his favorite pleasantry that he knew every soul in the place. So, students, बहुत सालों से वो यहाँ पर वर्क कर रहा है, एंड फेवरेट प्लेजेंट्री मीन्स यहाँ पर प्लेजेंट्री फ्रेंडली एंड रिमार्क ऑफ ग्रीटिंग, मतलब उसके लिए ये है, ही नोज एवरी सोल इन द प्लेस। काफ़ी टाइम से वो वर्क कर रहा है, उसका मन में कोई डर नहीं है कि यहाँ से कोई उठ जाएगा। उसने बहुतों को यहाँ पे बरिड किया है। नाउ आउटसाइड द वॉल, farthest from the public road, was a horse and a light wagon waiting. अब आउटसाइड द वॉल, ये सेमेट्री के बाहर जो है, और फादर्स्ट फ्रॉम द पब्लिक रोड, रोड के भी थोड़ा सा दूर पे, मतलब वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी खड़ी, घोड़ा लाइट वेगन वॉज द हॉर्स एंड द लाइट वेगन, पीछे जो कार्ट होता है वेगन, है ना। अब ये गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, ये कार्ट वहाँ पर है। अब ये क्यों है वहाँ पे, इसका हम आगे पता करेंगे कि क्यों है। आप सोचिए ये क्यों है वहाँ पे, ये तो खुदाई कर रहे हैं। अब क्या करना है इनको, वहाँ पर ये गाड़ी के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर एक वेगन खड़ा है। वॉज द हॉर्स एंड द लाइट वेगन वेटिंग। नाउ लास्ट पैरा ऑफ पेज नंबर 6. The work of excavation was not difficult. The earth with which the grave had been loosely filled a few hours before offered little resistance and was soon thrown out. तो ये जो खुदाई का काम था वो डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि ये जो अभी जो बरिड किया है, तो लिटिल रेजिस्टेंस, बड़ी कम मुश्किलों से उसको गुजरना पड़ा जैस को, जब खुदाई हो रही थी। ठीक है, और वो जल्दी ही निकाल दिया गया, was soon thrown out, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही इसे बरिड किया है। सो रिमूवल ऑफ द कास्केट, कास्केट मीन्स कॉफिन, जो जिसमें डेड बॉडी को रखते हैं, फिर उसको उसके साथ अंदर बरिड करते हैं। From its grave was less easy, but it was taken out, for it was a perquisite of Jess. So casket को निकालना from its grave वो थोड़ा कम easy था, but it was taken out, and for it was a perquisite of Jess. Perquisite means something to which somebody has a special right because of their position. Obviously perquisite है क्योंकि जेस को तरीका है काम करने का, वो यहाँ काम करता है, बरिड करता है, और सिर्फ अच्छे से पता है। भले ही थोड़ा लेस इजी था कॉफिन को निकालना है, कास्केट को निकालना, बट उसने निकाल दिया because he works in the cemetery. Now he carefully unscrewed the cover and laid it aside. Unscrew किया, exposing the body in black trousers and white shirt.
अब बॉडी मतलब वो जो ऊपर का जो कवर है कॉफिन का उसको हटाया तो क्या है, वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स में एक मैन है. At that instant, a crackling shock of thunder shook the stunned world, and Henry Armstrong tranquilly sat up. अब थंडर बिजली कड़कती है और एकदम ही चौंकाने वाले बच्चों ये होता है कि ये यहाँ पर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, पीसफुली हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग जो है बैठ गया है. आप अपनी बुक की पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो डेड बॉडी है वो बैठी सी दिखाई दे रही है. हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रैंक्विली सैट अप, ट्रैंक्विली नहीं, धीरे से पीसफुली. अब कोई डेड बॉडी हो, पहली बात तो सेमेट्री का जो ये जो कब्रिस्तान का जो पूरा सीन होता है, अगर हम रियल में भी जाएं तो वैसे ही बहुत डर लगता है, उसके पास से गुजरने में डर लगता है. चलो उसके अंदर चले भी गए और किसी कॉफिन को निकाल भी दिया, उसको हटाया भी और कोई डेड बॉडी ऐसे बैठ जाए तो क्या हालत हो जाएगी. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन फील. When, with inarticulate cries, the two students fled in terror. जो बच्चे थे दो, वो तो टेरर में डर के मारे भाग गए. Nothing on earth could have persuaded the two to return, but Jess was of another breed. और कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब इस धरती में, मतलब ऐसा बताया था कि इतना डरे वो डेड बॉडी को बैठा देख के कि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्हें ये कन्विंस कर सके भाई वापस आ जाओ. नहीं. अब बचा कौन, जेस. बट जेस वॉज ऑफ अनदर ब्रीड. अनदर ब्रीड क्या, वो भी ह्यूमन बीइंग है बट वो अनदर ब्रीड में क्यों कहा गया है स्टूडेंट्स. ब्रीड, डिफरेंट बैकग्राउंड और अपब्रिंगिंग, डिफरेंट बैकग्राउंड से है वो. अब है तो वो ह्यूमन बीइंग बट वो तो स्टूडेंट्स ही थे. ये तो रहता ही यहाँ पर है बारिड, और ये एवरी सोल को जानता है, गाड़ना निकालना सब काम किया उसने, यहाँ पर काम किया, तो उसको डर नहीं लगा इस चीज़ से, उसके लिए तो आम बात है. बट जेस वॉज ऑफ अनदर ब्रीड. सो दिस वॉज पेज नंबर 6. हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग who was buried alive. Two students with the help of a person who works at cemetery named as Jess, gigantic man की हेल्प से उसकी कॉफिन को निकाल रहे हैं और बाहर एक रोड पे कार्ट खड़ी है, गाड़ी खड़ी है. ठीक है, इस तरह से बता दिया गया. क्यों बरिड किया गया, बिकॉज ही वॉज वेरी इल, तो डेड टाइप ही हो गया था वो. तो फैमिली और वॉट एवर मे बी थॉट दैट ही इज डेड, ही इज नो मोर. बट क्या होता है जब कॉफिन का अनस्क्रू किया तो कौन खड़ा हो गया, मतलब सेटअप हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग. अब डर के भाग गए बच्चे तो. नाउ द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7. In the grey of the morning, the two students, pallid and haggard from anxiety and with the terror of their adventure still beating tumultuously in their blood. Pallid and haggard means उनके रंग उड़ गए, बहुत ही हवाइयाँ उड़ गई उनकी तो बच्चों की डर के मारे. ओके, और स्टिल उनका क्या हो रहा है, ये tumultuously in their blood. ये जो वर्ड है इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो गिवन एट योर बुक, दैट वेरी लाउडली. ऐसा लग रहा है कि उनका जो टेरर इतना ज़्यादा है कि ब्लड स्टिल बीटिंग टिमसली, धड़कनें भी तेज हो रखी हैं. मतलब बहुत ऑब्वियसली किसी डेड बॉडी को बैठा करके देखेंगे, बैठा हुआ देखेंगे तो डरेंगे ही सही. मेट एट द मेडिकल कॉलेज. ठीक है, ये टू स्टूडेंट्स मिलते हैं अब आपस में मेडिकल कॉलेज में. अब बातें करें, कॉन्वर्जेशन गिवन है. यू सॉ इट, क्राइड वन. एक ने कहा तुमने देखा उसे, देखा था. क्राइड वन. गॉड यस. व्हाट आर वी टू डू. गॉड यस, भगवान याद आ गए. नाउ दे वेंट अराउंड टू द rear of the building where they saw a horse and wagon hitched to a gate post near the door of the dissecting room. Mechanically they entered the room. अब जो बच्चों, वो जो हॉर्स और वैगन जो खड़ी थी ना वहाँ पे, उन्होंने उसी गाड़ी को
उनके बिल्डिंग के वहीं पर देखा। अब क्या उनका जो डिसेक्टिंग रूम, जैसे ये मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, बॉडीज़ पे या एनिमल बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे क्या करते हैं, वो मतलब स्टडी करते हैं, तो उनके पार्ट्स पे स्टडी करते हैं, तो वो रियल बॉडी होती है। तो उसमें क्या है, डिसेक्टिंग मीन्स जो कट करते हैं, जैसे कटिंग अप अ बॉडी मेथोडिकली टू स्टडी इट्स इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट्स को पढ़ने के लिए हम बॉडी को कट करते हैं, है ना। तो मेडिकल कॉलेज में ही होता है। तो उनके उसी डिसेक्टिंग रूम के बाहर ही थोड़े दूर पे वो गाड़ी खड़ी थी, वही सेम। नाउ अब वो रूम में एंटर करते हैं, क्या होता है, नाउ ऑन अ बेंच इन द सेमी डार्कनेस सैट जेस। बेंच पे कौन बैठा है, जेस। ही रोज ग्रीनिंग ऑल आईज एंड टीथ। अब उसकी आंखें और टीथ एकदम गुस्से में ही आंखें से चढ़ा के और टीथ को रगड़ के यूं देख रहा है उनकी तरफ। आई एम वेटिंग फॉर माई पे, ही सेड। मैं अपने पैसे के लिए आया हूँ यहाँ पर, वो कहता है। He said, I'm waiting for my pay. Stretched on a long table lay the body of Henry Armstrong, the head defiled with blood and clay from a blow with a spade. Now students क्या है, obviously कोई बॉडी को क्यों निकालेगा, अगर तुम उसे पे करोगे। स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को बॉडी चाहिए थी, तो वो मैं बॉडी देता है उनको, तो बॉडी के बदले उसको पे चाहिए था, तो ये तो डर के भाग गए कि बॉडी तो बैठी हो गई, लेकिन उसने तो काम किया अपना, तो उसको अपना पैसा चाहिए। अब टेबल पे किसको लटा दिया है, हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग को। लेकिन जो लास्ट लाइन है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। द हेड डिफाइल्ड विद ब्लड एंड क्ले फ्रॉम अ ब्लो विद अ स्पेड। जो हेड है हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग का, उसमें ब्लड भी लगा हुआ है। डिफाइल्ड मीन्स क्या होता है, अनक्लीन, मतलब ब्लड भी है और मिट्टी भी लगी हुई है, ठीक है। फ्रॉम अ ब्लो विद द स्पीड, ऐसा लग रहा है जैसे वो जो स्पेड है उससे मारा है उसको। अब जो हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग बच्चों डेड है, बिकॉज वो बैठ गया था। तो किसने मारा होगा उसको, उसको चोट कैसे आई यहाँ पर, वो तो बैठ गया था, बीमार ही था, मरा नहीं था। बट किसने किया ये, ऑब्वियसली जेस। उसको पैसा चाहिए। अब डेड बॉडी पूरी अंदर तक आ गई है, तो कौन देख रहा है कि किसने मारा, वो तो दफना गए जो दफना के गए, ठीक है। सो दिस वॉज द स्टोरी स्टूडेंट्स by Ambrose Bierce, and wrote One Summer Night, and this One Summer Night as a chapter is an edited version of One Summer Night. This was the story about Henry Armstrong, who was buried alive, and how the two medical students, with the help of a gigantic man named Jess, उसकी बॉडी को ग्रेव से निकालते हैं, उनको चाहिए थी, और एंड में क्या होता है। ओके, that's all. Thank you. Yes, students, now page number 8. Word meanings are given. You have to read and learn these meanings. Okay, word meaning you have to learn. No need to write in your copy. Now, second thing, read to understand. Section A exercise. Answer these questions with reference to the context. Nothing on earth could have persuaded the two to return. This line is taken from your chapter, so you have to do it yourself. That who are the two referred to in this extract, किन दो के बारे में बात हो रही है, where were they at this moment, why could they not be persuaded, क्यों नहीं मनाया जा सकता उन्हें, ठीक है। Now the second context is I am waiting for my pay. मैं अपने पे के लिए वेट कर रहा हूँ, ये भी लाइन आपके चैप्टर से है। He said, who said these words, who was to pay him and for what, where was the speaker at this moment. Now this exercise A is your homework, or you have to do it yourself. Okay, answer yourself and write in your copy.
सेकेंड ट्रू फॉल्स भी आपको खुद करना है स्टूडेंट्स. द वेदर वॉज क्वाइट प्लेजेंट. Whether it is true or false, Henry Armstrong gained consciousness while he was buried. There was other people in the graveyard apart from the three young men. Jess was a professor who had offered to help the students. There was a horse and wagon beside the grave. The casket was taken out of the grave. So whether these statements are true or false, ये भी आपको करना है एंड डू इट इन योर बुक इटसेल्फ. ट्रू और फॉल्स आप बुक में ही करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सी. आंसर दीज क्वेश्चंस. व्हाई डिड द यंग स्टूडेंट्स feel reasonably secure? So students, I am giving you the answers that क्यों उनको सिक्योर फील हो रहा था स्टूडेंट्स को. So there were flashes of lightning and signals of a storm on that dark summer night. It was not a night in which any witness whose word could be dependent on was likely to moving about cemetery. So the three men who were there digging into grave of Henry Armstrong felt reasonably secure. Second one, what were the horse and the wagon waiting for? Why were they outside the wall? किसका वेट कर रहा था? वेगन. The horse and wagon would be used to transfer the dead body to the dissecting room of the medical college. अब पता लग गया वो गाड़ी में रख के उस डेड बॉडी को ले जाते, है ना, इसलिए वो वहां पर डिसेक्टिंग रूम के वहां पर वेट करते. नाउ हाँ, द हॉर्स एंड वेगन वुड बी यूज टू ट्रांसफर द डेड बॉडी. मतलब डेड बॉडी तो बैठ गई थी इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट वो ट्रांसफर करते डेड बॉडी को डिसेक्टिंग रूम तक मेडिकल कॉलेज के. इसलिए टू स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेज के थे वहां पर थे. दे वर आउटसाइड द वॉल सो दैट नो वन वुड बिकम सस्पिशियस अबाउट देयर प्रेजेंस और आस्क क्वेश्चंस. वो आउटसाइड थे तो कोई भी डाउट नहीं करता कि क्यों है यहाँ पर, थोड़ा दूरी में जो गाड़ी खड़ी थी. Now, third one, how do you know that Jess was of another breed? Another breed का कैसे लगा Jess? Another background का. Jess did not run away in terror. His daring response to the unusual sight showed that he was of another breed. Now, the two medical students were still in a frightened state the next day. How do you know this? The two medical students were still in a frightened state the next day because their facial expressions, pallid and haggard from anxiety, रंग उड़े हुए थे उनके डर के मारे और टेरर शो हो रहा था. They show their short verbal exchange. You saw it shows that the image of the dead man rising was still roaming in their minds. वो उसकी किसके बारे में बात कर रहे थे टू मेडिकल स्टूडेंट्स? तुमने देखा था? देखा? क्योंकि वो जो डेड बॉडी बैठ गई थी उनके सामने, डेड मैन राइजिंग, और वो जो ख्याल था, वो डर जो था उनके अभी भी दिमाग में घूम रहा था, रोमिंग इन देयर माइंड्स. सो हियर वी डन विद द क्वेश्चन आंसर्स. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट idioms of color is given on page number 9 expand words के बाद में. ये आपको खुद ही करना है in the book itself. बुक में ही करेंगे आप. मैच द एक्सप्रेशंस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. सो idioms of color you have to do it yourself in the book itself. And here we done with the chapter One Summer